हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर इसमें हो चुका था। आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि फिगर शो ए कंडक्टिंग लूप ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स lies in a magnetic field B is equal to this and the wire is having the resistance R ohm per meter. Then find the current in the loop at t is equal to 2 seconds. First of all, you have to calculate EMF. E is equal to d phi by dt and which is equal to A into dB by dt. Area which associated with flux, the area which are associated with flux is equal to pi r square by 2 is pi r square by 2 into dB by dt, where B is equal to this value. Then dB by dt is equal to 380 square plus 2ct, that is equal to E. And we are going to calculate the current, then EMF upon net resistance, which is equal to R into complete length. Suppose the complete length of the wire is capital L, we are going to put this value. Now this length is equal to pi r by 2, and this one is r by 2, sorry, r and r, 2r and r by 2, 3r. It means the total length is 3r plus pi r. Then r will be common. We are going to put the value of I here, which is pi r square 3a square plus 2ct divided by 2, and net resistance is r into, r will be common here, and 3 plus pi r से r कैंसिल हो गया, and the final result will be I is equal to pi r 3a square, 3a स्क्वायर नहीं, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 380 स्क्वायर, तो t यहाँ पे गायब है, रुकिए, 380 स्क्वायर हो गए। तो 380 स्क्वायर, वहाँ पे भी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वहाँ पे भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा लिखते वक्त। 380 स्क्वायर प्लस 2ct and whole divided by 2r 3 plus pi. This means the I as a function of time t. We are going to put the value t is equal to 2 seconds. Then I is equal to pi r into 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, 12a plus 4c whole divided by 2r 3 plus pi. This will be your final answer. Okay. Moving to the next slide, and the question is
In a coil of resistance capital R, magnetic flux due to external magnetic field varies with time. Phi is equal to K C minus T square Weber और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको. Where K and C are the positive constant, find the total heat produced in the coil at t is equal to 0 to t is equal to c second. Okay, so first of all you have to calculate EMF, which is equal to E, and the value is mod value, तो नेगेटिव साइन को भी प्लस कर देंगे हम लोग, and 2 kT, and the resistance is R, divide by R, divide by R, then divide by R, and we will get the value for I. Then I is equal to 2 kT by R. Now I as a function of time t, we are going to calculate the total heat dissipation for this time interval. So dH is equal to I square R dt. We make elemental approach because the I is variable from 0 to C, and this will be equal to H. H is equal to I square. I square is 4 K square T square by R square, and one more is above, R is above, then नीचे होगा R and into dt from 0 to C is equal to, the final answer is 4 by 3 K square T cube, and the limit from 0 to C, then H is equal to 4 by 3 K square C cube. This will be your answer. Okay, H is equal to 4 by 3 K square C cube. Moving to the next question. Figure show a fixed coil of N turns and radius A carrying current capital I at a distance x from the center of the another small coaxial coil of radius small b, where b is very less than a. It means यह इनक्वालिटी देके कह रहा है कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि डायरेक्शन देखिए, पहले आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट पे इधर होगा, और जो b होगा ड्यू टू बिगर कॉयल वह पूरे के पूरे स्मॉलर कॉयल के एरिया पे सेम होगा. दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2. Okay, now and the resistance is capital R is moving toward the first coil with uniform velocity. We find out the induced current in the smaller coil. Here the magnetic field will be vary with this loop. Then flux associated, which is equal to phi is equal to B into A, where B is equal to mu naught I R square upon 2 R square plus x square to the power 3 by 2, and the area of the smaller coil is equal to pi into and R. Here R is A, then value put for the R is equal to A. The pi mu naught I A square upon 2 A square plus x square whole to the power 3 by 2 into pi into B square, and the total number of turn N, then multiply by N, which is the total flux phi.
Now the d phi by dt is equal to E, and डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एंड द कांस्टेंट वैल्यू n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 टू द पावर -2 हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं इसको हटा रहा हूं इधर इतना टर्म। देखिएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3/2, चूंकि मॉड है तो 3/2 पॉजिटिव लेके आएंगे, एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस है तो -5/2। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू EMF इंड्यूस। तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन को यहां पे लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड E इज इक्वल टू n नॉट म्यू पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई किया, एंड इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू V, and whole divide by a square plus x square to the power 5/2 पॉजिटिव हो जाएगा, and into 3/2. This one is equal to E. If we divide by the resistance R, then we will get for the current I, which is the induced current in the smaller coil. ओके, नोट डाउन करो। इंड्यूस EMF इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा। इंड्यूस EMF इन केस ऑफ मोशनल EMF इन केस ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इसको समझते हैं हम लोग। बी, इस रीजन में द मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होता है, या ये बी है वह इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये जो कॉइल है जिसका रेडियस आर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस EMF डेवलप होता है, और वह मान लीजिए बढ़ रहा होगा, तो देखिए यदि बढ़ता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप होगा, यानी एक ऐसे एक बैटरी बनाते हैं जिसका EMF E होता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, और दैट इंड्यूस करंट अपोज द इंक्रीज इन दिस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस एरिया, and this induced EMF will cause the flow of current, which is the induced current, and the induced current is implies that there will be some potential difference. There will be some potential difference across the length of the wire, because if the potential difference will exist, then current will be exist, है ना। तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू हम लोग बात करें, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। एरिया को यदि हम फिक्स कर लें, या कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एंड डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू ई। नाउ द इंड्यूस करंट की यदि हम बात करें, तो देखिए ये जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यदि घट रहा होता तो क्लॉकवाइज हो जाता है, बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो
यानी ये देखिए इसमें करंट का जो फ्लो है फ्रॉम दिस टू दिस इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर इंड्यूस होगा, और वह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही करंट का फ्लो होता है। ये हम लोग करंट में ही पढ़ रखे हैं। तो देखिए, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, हम कहेंगे कि हर एक पोजीशन पे ये है, यानी वायर के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वह हर एक पॉइंट पे देखें तो एक तो क्लियर है कि वह करंट के डायरेक्शन में होगा, और यह जो कॉइल है उसके टेंजेंशियल होगा। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, IEN से लिख रहा हूं मैं, सॉरी EIN। तो दिस वन इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा नहीं कि इसी रीजन में इतने में ही होगा, क्योंकि यह जो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा यह इस हर रीजन में मिलेगा यहाँ। तो इसके पूरे रीजन में देखिए ऐसे यदि ये दीज आर द कंसेंट्रिक, ऐसे कह सकते हैं, इसको भी कंसीडर करते हैं कंसेंट्रिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सॉरी हाँ, लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड दिस फॉर्म ए क्लोज लूप, या क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये हम लोगों ने गॉस लॉ में ही देखा था, पर यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्मेशन होता है, इसलिए यह नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव होगा यानी क्या होगा, वर्क डन पाथ पे जैसे डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पे डिपेंड करेगा। एक पूरे कंप्लीट लूप की यदि बात करें तो वर्क डन 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कंप्लीट लूप की तो 0 होगा, पर यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। जो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा, वही इलेक्ट्रिक लाइन की बात करेंगे आप। तो ये रहा EMF इंड्यूस थ्रू द होल ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू dV बाई dt। इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब इसमें दो चीजें हैं कि यदि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है, तो दोनों के केस में जो EMF इंड्यूस होगा वह अलग अलग होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितना होगा उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कितना होगा उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल दो केसेस बनेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, induce electric field outside the cylindrical region of the time varying magnetic field. First of all, we have talk about the inside region. After that, we will talk about the outside. So this one is the region of the magnetic field, which is the into the plane, and if we consider a coil of radius x placed inside this magnetic field region, if the magnetic field is varying and it is increases with respect to time, then an anti-clockwise current set up in this coil, and the electric line will be tangential at every point of the coil. Okay, now what will be this value? First of all, EMF induced is equal to pi x square into dB by dt from the previous slide. This one is the equation number 1. Now, the basic concept for the potential difference is equal to BB minus BA is equal to E minus E dot dx from A to B. Now, if we consider a small element on this coil which is dx, and the potential difference is VB minus VA. VA is the previous point, and after that B point. Now
electric field E will be uniform because it is the symmetric about the origin or the axis of magnetic field कह सकते हैं इसको। तो E will be uniform, इसलिए E को इंटीग्रेशन से बाहर रखा हमने, एंड dx will be integrate from A to B, यानी A to B dx dx जोड़ते जाएं तो कंप्लीट 0 to 2 pi x, एंड हियर x is less than r। ये जो रेडियस है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे x की वैल्यू ये छोटी है, एंड विच इज VB माइनस VA इज इक्वल टू EMF इंड्यूस, जिसको हम E कह सकते हैं, VB माइनस VA को, यही वैल्यू। और यहां पे क्लोज लूप में जा रहे हैं, देखिए क्लोज लूप में EMF इंड्यूस की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, और ये IN लिख दिया, IN स्टैंड फॉर इंड्यूस, दैट इज इक्वल टू E इंड्यूस इनटू 2 pi x। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लूप। ध्यान रखिएगा यहां पे 0 इसलिए नहीं होगा कि वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। यदि इन दोनों को इक्वेट करें, ये देखिए तरीका रहा डायरेक्ट फ्लक्स से, और यह भी रहा बाय यूजिंग प्रीवियस कंसेप्ट, तो दोनों से ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लूप सेम आएगा। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 E induce into 2 pi x is equal to pi x square into dB by dt, then x will be cancel out, x से एक x कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। दिस इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इक्वल टू x by 2 into dB by dt इनसाइड द रीजन। ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को, यदि हम आउटसाइड द रीजन की यदि हम बात करें, देखिए आउटसाइड यानी ये देखिए आपका कॉइल है, और इसमें जो मैग्नेटिक करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में, देखिए ऐसे है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। यदि हम इसको इधर से देखें तो देखिए इसका रेडियस r है और इसका रेडियस है यहां से x, जो कि x r से बड़ा है। यदि हम इसको इधर से देखें और इसका हम व्यू बनाएं तो देखिए ये होगा आपका लूप, और इसमें होगा क्रॉस में और आपका कॉइल जो है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे इस तरीके से जा रहा है ना, तो करंट इधर से इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उधर होगा। इधर से देखेंगे तो इस प्लेन के ऐसे अंदर जा रहा है, क्रॉस में बना दिया हमने। और ये जो कॉइल है जिसका रेडियस x है वो ऐसे है। इसमें जो बेसिक जो चेंज आएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया लिखते हैं, तो एरिया तो आपका पाई एक्स स्क्वायर कंसीडर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि x पूरे एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए जितना रेडियस मैग्नेटिक फील्ड का वही रीजन से इंक्लूड होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी होगा। बस यही अंतर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ई मॉड वैल्यू के साथ। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जैसे पिछले केस में डिराइव किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स into dB by into electric field induce into 2 pi x is equal to EMF E, ये आया था। तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंज हो जाएगा जब आउटसाइड द रीजन की बात करेंगे हम। ऑन कंपेयरिंग
on comparing, pi will cancel out, and the electric field induced is equal to r square by 2x into dB by dt. Both of the value inside and outside for the calculation of induced electric field. Always remember this. यदि क्वेश्चन आएगा तो आप इसे डेराइव करना नहीं बैठ जाइएगा, आपको याद होनी चाहिए रिजल्ट, तभी आप फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आउटसाइड रीजन जब x इज ग्रेटर देन r है, और इनसाइड पीछे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, है ना. और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ऐसा मैग्नेटिक्स लाइन कौन देता है जो इनटू द प्लेन जा रहा होगा एकदम परफेक्ट सर्कुलर रीजन में, तो कहेंगे वो सोलेनॉइड का होगा, और जो कि किसी एक साइड से व्यू करेंगे तब ऐसा मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा. ठीक है ना. ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. और चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए डिफाइन होता है कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है. वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी वर्क डन जैसे होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA ये होता. और VB माइनस VA को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E डॉट dx फ्रॉम A टू B, और यहाँ पे माइनस भी लगा दिया हमने. तो अब देखिए, यह यदि इस एक लूप की बात करें तो यहाँ पे लूप बना दें तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव का नेचर का होता है. बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज द इलेक्ट्रिक लाइन ई लाइन यानी इलेक्ट्रिक लाइन आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखिए, ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m. प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m, radius a and uniformly distributed charge q is placed inside a solenoid magnetic field. solenoid magnetic field आपका ये है magnetic field with its plane normal to b vector and coaxially with the solenoid as shown. If the b is changing with time as b is equal to kt, then find the angular speed attained by a ring after the time t. तो t टाइम के बाद कितना अटेन करेगा. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस निकालते हैं. ये इनसाइड रीजन का रिजल्ट है, तो दैट इज इक्वल टू x बाई 2 इंटू dV बाई dt. मैं बताता हूं आपको क्यों यह एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है. फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू dV बाई dt का मॉड यानी k, विच इज इक्वल टू ak बाई 2, विच इज द constant electric field developed on the periphery of this coil, or which is tangential at every point. Okay, now if we consider the elemental charge on this coil, this non-conducting ring, which is dq, and dq will experience the force by this induced electric field. यह फिनोमिना तो सेम होगा, चाहे कंजर्वेटिव नेचर का हो या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का हो. फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, या सेम लगने वाला है. तो जरा देखिए, इसकी वजह से इधर फोर्स लग जाएगा, ये इसकी वजह से इधर टेंजेंशियल लग जाएगा. यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हर एक एलिमेंटल चार्ज पे फोर्स लगेगा. और जैसे ही फोर्स लगेगा तो यह अबाउट इट्स दिस सेंटर, इसको ये रोटेट कर देगा, घुमा देगा. तो यही पूछ रहा है कि आफ्टर टाइम टी यह कितना गेन कर लेगा. तो आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम फोर्स की बात करें dF,
which is the elemental force on each charge, which is equal to dq into electric field induced, which is equal to ak by 2 into dq. Now if we calculate the torque on this ring, then we have to make approach for the elemental torque, which is dq. dq is equal d tau बराबर देखिए क्या होगा, तो कहेंगे फोर्स df इंटू दूरी r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r यहां पे आपका a है, a ये d टाउ। और देखिए यह एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा, तो हर एक dq पे जो टार्क लगेगा सारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, विच इज इक्वल टू ak यानी a स्क्वायर k बाई 2 इंटू dq। दिस वन इज द एलिमेंटल टॉर्क। अब देखें a स्क्वायर k बाई 2 इंटू dq, डी टाउ, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी टाउ डी टाउ डी टाउ, तो डी टाउ विल बी इंटीग्रेट फॉर द होल लूप। a square k by 2 is the constant term here, and we will integrate for dq, then tau is equal to a square k by 2 and the whole charge will be q। इंटीग्रेशन के बाद ये q हो जाए। टॉर्क मिल गया हमें, और ये देखिए तो टॉर्क है जो कि कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है इस रिंग पे, मास दिया हुआ है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं, देखिए अप्लाई करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द रिंग, विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ए स्क्वायर के क्यू बाई 2 is the tau into m a square get cancel out, and the final result is kq by 2m, which is equal to alpha kq by 2m, and now omega is equal to alpha t, because initial omega is 0, तो alpha t लिखेंगे, and now the answer is kqt by 2m. This is the angular speed as a function of time t. This will be your final answer. देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन बना, जो कि रोटेशनल के भी कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया अपने अंदर, है कि नहीं? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this one. A long solenoid has n turn per meter, radius r, and carry a current I in the gravity freeze region, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, which is equal to mu naught into n into I. Okay. From the axis at a distance twice of the radius, ये देखिए, पहले ट्वाइस कहते ही पहले हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा ले सोलेनॉइड का। ये है कैपिटल आर। नाउ ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज व्हाट, यानी यहां से, जो कि 2r डिस्टेंस पे अब पढ़ते हैं। ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ए चार्ज प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू एंड मास स्मॉल m आर प्लेस्ड। If the current in the solenoid is suddenly switch off, then find out the velocity attained by the charge। देखिए बहुत ही पहले तो हमें यह समझना होगा कि वह वेलोसिटी अटेन क्यों करेगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पहले म्यू नॉट आई है t बराबर 0 पे, और b की वैल्यू फिर 0 हो जाता है कितने टाइम पे, t टेंडिंग टू डेल्टा t, बहुत डेल्टा t टाइम में ही, जैसे स्विच ऑफ किए डेल्टा टी टाइम के अंतर्गत 0 हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया।
यानी हम इसको लिख सकते हैं dB बाई dt, यदि हम लिखना चाहें लिख सकते हैं म्यू नॉट n i, सॉरी स्मॉल n, म्यू नॉट n i डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये है dB बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा टी इज द एलिमेंटल टाइम। इतने टाइम के अंदर बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B से 0 हो गई। तो आपको यह समझना है कि जब यह वैल्यू B से जब 0 हुई तो उस दौरान चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ, और एक ऐसे समझिए कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा जिसका रेडियस 2r है, और ये B से 0 हुआ यानी अंदर की डायरेक्शन में घट रहा है। पहले देखिए अंदर घट रहा है, इसको बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए अपना इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में देगा कि वह इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, तो घटेगा अंदर, तो यह क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। अब इंड्यूस करंट की बात ना करें, क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहां पे कॉइल नहीं है, तो हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वह ऐसे इस पॉइंट पे या इस कॉइल ऐसे बना लें, एक इमेजिनरी कॉइल कह सकते हैं, और यहां से 90 डिग्री पे यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलेगा, पर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब वैल्यू B से 0 हो रही होगी उतने, और उतने ही दौरान में यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंपल्स दे देगा और यह इसी डायरेक्शन में ऐसे सीधे वेलोसिटी गेन कर लेगा। यही पूछा है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा देगा, क्योंकि कुछ समय के लिए जब इंड्यूस होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B से 0 होगा, उस दौरान में इंड्यूस होगा, और होगा तो यह V गेन कर लेगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर खुद से जरा कीजिए। तो ओके, नाउ म्यू नॉट एन आई से वैल्यू 0 हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस या इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इक्वल टू आउटसाइड द रीजन है तो आर स्क्वायर बाई 2x इंटू dB बाई dt। dB बाई dt इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई डेल्टा टी। ये देखिए रहा, और जहां पे x की वैल्यू देखिए यहां पे 2r है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r, यानी r से r एक कैंसिल, तो r बाई 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इक्वल टू, इनटू चार्ज भी कर लें तो हम फोर्स की बात कर लें, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r बाई 4 इंटू म्यू नॉट एन आई बाई डेल्टा टी। इतना फोर्स लगेगा वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक कंसेप्ट है इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम, टाइम इज डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियली, तो रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल, mv माइनस 0। देखिए यहां पे पुट करते हैं वैल्यू, देखिए r बाई 4 इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई बाई डेल्टा टी, ऊपर भी देखिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू m इंटू वी, डेल्टा टी गेट कैंसिल आउट, एंड v इज इक्वल टू r इंटू म्यू नॉट एन आई whole divide by 4m. This will be the velocity gained by the charge particle when magnetic field is suddenly switched off. Okay, write down this solution. सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ए डिस्क इज प्लेस्ड। ये देखिए मैं टेबल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए आपका ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे एक रिंग रखा हुआ है, पहले एक डिस्क, ये है आपका डिस्क, प्लेस्ड विद
नॉन कंडक्टिंग रिंग विथ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहां पे एक रिंग भी है, ये देखिए ये जो रेड, ये एक रिंग के अंदर एक डिस्क को फिट कर दिया गया, ये रिंग, और नॉन कंडक्टिंग है, इट मीन्स चार्ज का ट्रांसफर इस रिंग से नहीं होगा क्योंकि चार्ज ऑन द रिंग Q दिया है और मास m, और इसका भी डिस्क का भी मास m दिया है और वह इस पे कोई चार्ज नहीं है डिस्क पे। ये क्वेश्चन है। एंड द रेडियस इज r, दोनों का रेडियस r कंसीडर करना है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B which is symmetrically with the center of the disk is switch on, अभी t बराबर 0 पे B बराबर 0 है एंड t टेंडिंग टू डेल्टा t टाइम में ही B की वैल्यू 0 से B बराबर B हो गई, यानी dB बाई dt, अब देखिए dB बाई dt इज इक्वल टू B माइनस 0 बाई डेल्टा t, ये आपका मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और वह परपेंडिकुलरली यानी ऐसे, ये है मैग्नेटिक्स में, आप इसको समझिएगा, इस टेबल के परपेंडिकुलर, यानी इसके प्लेट के या डिस्क के एरिया के परपेंडिकुलर ऑन हुआ है। तो फाइंड द एंगुलर स्पीड अटेन्ड बाय द डिस्क ड्यू टू दिस, सेम कंसेप्ट है, और यहां पे आपको टॉर्क से ही, यहां पे भी टॉर्क लगेगा, पर सडनली अचानक ये काम हो रहा है, तो जब अचानक की बातें होती हैं तो इम्पल्स की बात याद आती है, चाहे एंगुलर इम्पल्स हो या लीनियर इम्पल्स हो। यहां पे एंगुलर इम्पल्स का देखिए यूज होगा, ट्राई कीजिए, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको। Okay. Then electric field induced inside the region x by 2, x is r by 2 into dB by dt यानी b by delta t, and if we multiplied the charge which is dq on the ring, कहीं पे भी ले लें, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस पे फोर्स लगाएगा, विच इज इक्वल टू df, एंड df इज इक्वल टू, ओके ये रहा, एंड d टाउ इज इक्वल टू, हम देखें तो कहेंगे df इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन का था, इनटू दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है ये, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर बाई 2 इंटू डी क्यू इंटू बी बाई डी टाउ। अब यह जो टॉर्क होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड 0 से b हो रहा है, यानी अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इसको घटाना चाहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यदि ऐसे देखें इसको तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा बाय एवरी एलिमेंट ऑन द चार्ज। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो सिर्फ डी क्यू इंटीग्रेट होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू बाई 2 इंटू बी बाई डी टाउ, ये रहा। अब कंसेप्ट इसके बाद क्या लगेगा, देखिए एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे एंगुलर इंपल्स टॉर्क इंटू डी टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल,
जो कि 0 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब टॉर्क की वैल्यू हमने निकाला है r स्क्वायर क्यू बाई 2 इंटू बी बाई डी टाउ, और अगेन डी टाउ से मल्टीप्लाई होगा and is equal to I by omega. D tau will be cancel out and omega is equal to r square q b by 2I. I is the moment of inertia of the whole system which are rotating by this torque, and the total moment of inertia will be the moment of inertia of the ring as well as disk, which is mr square and mr square by 2 both, because both of the mass having m same mass. So mr square plus mr square by 2, which is equal to 3 by 2 mr square. Then final answer will be omega is equal to r square q b upon 2 into 3 by 2 m r square get cancel out, 2 cancel out, and the final value omega is equal to qb by 3m. qb by 3m थोड़ा विजिबल नहीं होगा पर इसको बार बार मैं बोल देता हूं, qb by 3m, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि यह शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है। ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर ही रहा हर एक टाइम पे, तो जिस टाइम पे वह वेरिएशन मिलेगा उस टाइम पे उसको एक एंगुलर इंपल्स मिलेगा, और वह एंगुलर इंपल्स उसको रोटेट कराने के बाद बस, क्योंकि वो परफेक्टली स्मूथ सरफेस रखा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वह रोटेट करता रह जाएगा, तो विच इज QB by 3. ओके, नाउ okay, self inductance and the mutual inductance, both are the topic we will discuss in the next lecture. अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, देखिए ध्यान से सुनिएगा बातें, मोशनल EMF by moving of the wire or coil, second one is the time varying magnetic field, and the third one is the induced electric field in the time varying magnetic field, which are the concentric magnetic electric line induced through the magnetic field region, either inside or outside, both of the cases, and both of the cases the induced electric field will be different value है, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी अभी किए। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।